Hello dear students, welcome to the channel Light Action Physics। आज हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। कूलम्स लॉ basically deals with the force between two charges। हम लोग दो मासेस के बीच में फोर्स लगना 11th क्लास के चैप्टर में सीखे हैं, जिसमें कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज F is equal to G m1 m2 by r square. That you have already know that. The force of gravitation we had G m1 m2 upon r square. The similar kind of forces we have Coulomb's law between two charges. This is the force between two masses, m1 and m2. The force of gravitation is attractive in nature. Now Coulomb's force में जो होगा वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का फोर्स है। जैसे मान लीजिए दो पॉजिटिव चार्ज हो गया प्लस Q1 and plus Q2. Both are similar charges, so they can repel each other with a force, suppose F. Okay, now this force will be same F. If the two charges are Q1 and Q2 are opposite in nature, suppose Q1 is positive and Q2 is negative, then forces will be attractive. This is force F, this is force F. In both the cases, it depends upon, let the distance between the two charges is r, and these are point charges. Point charges. सारा पॉइंट चार्ज है, कोई बड़ा बल्कि चार्ज नहीं है। पॉइंट चार्ज जिसका डायमेंशन बहुत कम हो, बहुत ही छोटा हो, वो चार्ज को हम लोग पॉइंट चार्ज कहेंगे, और वही उसी के बीच का फोर्स हम लोग देखेंगे। कूलम का ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था। उन्होंने ये बताया कि जो कूलम ने बहुत सारे चार्ज पे वो कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनके बीच के फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए। अल्टीमेटली उन्होंने कंक्लूड किया द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is proportional to the product of the charges Q1 and Q2, and also proportional to the inversely proportional to the square of the distance between them. This is similar to the gravitational force. Now ultimately the force F is equal to K Q1 Q2 by r square. K is a proportional constant, right? The value of K, what is K? K was calculated practically 1 by 4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 to the power 9. The unit will be Newton meter square by Coulomb square. ये आप जो ऐसा यूनिट है वो आप इसको देखकर निकाल सकते हैं। जैसे ये फोर्स है K K1 K2 by r स्क्वायर, यहाँ से K का वैल्यू निकालेंगे तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर और डिवाइडेड बाय Q1 Q2 हो जाएगा। तो फोर्स का न्यूटन, r स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, एंड Q1 Q2 कूलम्ब स्क्वायर। दिस इज द फोर्स ऑन इट। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट को हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। फ्री स्पेस मीन्स वैक्यूम। This is permittivity of free space. The value of permittivity of free space is equal to 8.84 into 10 to the power minus 12, and the unit will be reverse of this one, reciprocal of this one, Coulomb square upon Newton meter square. Since there is no unit for 4 pi, that is why K is inversely proportional to epsilon naught. So this is the result of epsilon naught, permittivity of free space. अब ये होता क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम फोर्स के बारे में पूरा जान लें।
ये फोर्स जो हो गया, दो चार्जेस के बीच में फोर्स हो गया. व्हाट इज द क्राइटेरिया बिहाइंड दिस? क्या क्राइटेरिया कूलम ने रखा कि ये कूलम्स फोर्स जो होगा किस किस. देखो, अगर मैं डिफिनीशन लिखाऊं तो डिफिनीशन यहीं पे ख़त्म हो गया. आप इसको वर्ड्स में लिख सकते हैं. द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू the product of the charges and the distance between and the inversely proportional to the square of the distance between them. That's all. The definition is finished. But अगर हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जाने कि ये कूलम्स लॉ जो है कब वैलिड होता है, किसके लिए वैलिड है और क्या क्या इसकी और एट्रीब्यूट्स हैं, तो उसको हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस कर सकते हैं. दैट कूलम फोर्स, दिस कूलम फोर्स इज इक्वल टू K1 K2 by R square. कूलम्स फोर्स, इसके बारे में पहला पॉइंट है, दिस फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस. लाइन ज्वाइनिंग whom? सेंटर टू सेंटर. दैट इज व्हाई इट इज a central force. Central force. Next property. If it is a central force, it is always along line joining, always along line joining the charges, line joining the centers of the charges. Now third point, it is central force, it is along the line joining centers of the charges. Now this force is conservative in nature. We know that if the work done, conservative का जो property होता है, work done by the force is independent of path, and for the closed path the total work done will be zero. For that property it is conservative. जैसे ग्रेविटेशन फोर्स भी कंजर्वेटिव होता है, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है. कंजर्वेटिव फोर्स, कूलम्स फोर्स. नेक्स्ट, ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाला गया फोर्स इज इक्वल टू K1 K2 by KQ1 Q2 by R square, Coulomb has calculated it for the point charge as well as for the static charges. ये मूविंग चार्ज के लिए कूलम्स लॉ नहीं है, हालांकि हम बहुत केसेस में इसको लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बोर्स थ्योरी पढ़े होंगे, बोर्स थ्योरी में जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन पे कूलम्स का फोर्स लगाता है और उसी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बनाकर वो इलेक्ट्रॉन को बोर्स ऑर्बिट में घुमाते हैं हम लोग. वहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देते हैं, बट बेसिकली कूलम्स लॉ इज़ नॉट मेड फॉर द मूविंग चार्ज. वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, वहाँ पे लगा दे रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल वैलिडेशन नहीं देता है. द कूलम्स लॉ इज़ वैलिड ओनली फॉर the static charges, static and point charges. It is for static and point charge. Now next topic, if it is for static and point charges, we have to understand what kind of force it is. अगर मान लो कि Q1 और Q2 पे जो फोर्स लग रहा है, क्या Q1 और Q2 पे अलग अलग फोर्सेस लगेंगे? तो नहीं. Q1 और Q2 पे, Q1 जो है Q2 पे फोर्स लगा रहा है, Q2 एट द सेम टाइम Q1 पे फोर्स सेम अमाउंट का फोर्स लगा रहा है, अपोजिट इन डायरेक्शन. दिस लॉ वैलिडेट्स न्यूटन्स थर्ड लॉ. इट फॉलोज Newton's third law. It also follows the inverse square law. जैसा कि आपने इसमें देखा था, ग्रेविटेशनल फोर्स में R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था. इसको हम लोग इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करना कहते हैं. तो नेक्स्ट पार्ट में हो गया, it follows inverse square law. Now next part,
अगर ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है और चार्ज और ये जो फोर्स आ रहा है वो इसमें कांस्टेंट आ रहा है, जिसमें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो क्या ये मीडियम से डिपेंड करेगा या मीडियम से इंडिपेंडेंट होगा? तो ये बहुत ही क्रूशियल इशू है। इसको जनरली इसमें कंफ्यूजन होता है कि कूलम्स का फोर्स जो है मीडियम चेंज करने से, चूँकि एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज हो जाती है, परमिटिविटी की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो क्या कूलम्स फोर्स चेंज हो जाएगा? तो इन जनरल हम लोग समझते हैं कि हाँ हो जाएगा, लेकिन कूलम्स फोर्स हमेशा कांस्टेंट होता है। आई विल टेल यू व्हाई द forces is different, but we can say the Coulomb's force is independent of medium. It is also independent of कोई भी मीडियम हो, Coulomb's force सेम रहेगा, but net force will change. I will tell you why. Now अभी हम लोग समझेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम अगर कोई फोर्स हो तो इसका मतलब है दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा कांस्टेंट होगा इन स्पाइट ऑफ अगर कोई तीसरा चार्ज मान लो लेके यहाँ पे Q3 लेके चले आए प्लस Q3, तो प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ थर्ड चार्ज और फोर्थ चार्ज और फिफ्थ चार्ज और एनी अदर चार्ज के प्रेजेंस से क्या इस दोनों के बीच का जो फोर्स लग रहा था पहले वो चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, ये Q3 आकर एक्स्ट्रा फोर्सेस Q1 और Q2 पे लगाना शुरू कर देगा, बट द नेट फोर्स विल चेंज, but the original force between the Q1 and Q2 will remain same. That is why it is independent of medium as well as it is independent of presence or absence of other charges. Presence of other charges. Okay, we have the point where we say it is independent of medium. We will discuss in detail. Suppose there are two charges Q1 and Q2 are kept in a medium where the permittivity is different other than वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा कोई मीडियम है तो उसका परमिटिविटी हम मान लेंगे E है, तो E नॉट नहीं है, E है, तो इस दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो फोर्स अब हम लोग लिखेंगे F. नाउ दिस F कैन बी रिटन एज F इज इक्वल टू K को लिखते थे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन लिखेंगे हम वापस Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ना यू कैन आर्ग्यू कि सर फोर्स तो चेंज हो गया, फोर्स तो अलग हो गया, डिस्टेंस वही रहा, चार्जेस वही रहा, बट फोर्सेस चेंजेस ड्यू टू द चेंज ऑफ द मीडियम। बट आपने पॉइंट में लिखाया है कि इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ना इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि अगर मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं बिटवीन द टू चार्जेस तो मीडियम का पोलराइजेशन होता है। देयर इज़ अ पोलराइजेशन इफेक्ट ऑफ द मीडियम। और नाउ पोलराइज्ड चार्जेस जो होता है वो Q1 Q2 पे एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं। तो दिस फोर्स इज़ नॉट द कूलम फोर्स, दिस इज़ द नेट फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस and which is affected due to the polarization of the medium. See, so it is not the Coulomb force. That is why I told you if Coulomb force की बात की जाएगी तो वो इंडिपेंडेंट होगा। दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स मीडियम से अफेक्ट होके नेट फोर्स जो होगा, मीडियम के चार्जेस जो उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे वो अफेक्ट कर देगा नेट फोर्स को। दिस इज द नेट फोर्स चेंजेस due to polarization of medium. Now also understand जितने ज़्यादा मीडियम, अगर इसके अंदर जो मीडियम है बिटवीन द Q1 एंड Q2 जो मीडियम है, जितना ज़्यादा पोलराइज हो पाएगा, जितनी आसानी से पोलराइज हो पाएगा, E की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। तो एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी की वैल्यू किस बात पर डिपेंड करी? तो इस बात पर डिपेंड करी कि कितनी जल्दी, कितनी आसानी से कोई मीडियम को हम लोग पोलराइज कर सकते हैं। तो
परमिटिविटी का जो रियल मीनिंग है वो भी यही है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द परमिटिविटी? इसको समझेंगे हम लोग इस तरह से. परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, व्हाट इज दैट? इट इज एबिलिटी, किसी मीडियम को कितनी आसानी से पोलराइज किया जा सकता है. सो इट इज़ द मेजर how easily the medium can be polarized. Okay, तो permittivity of a medium and permittivity of free space, दोनों का जो रेशियो होगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी. रिलेटिव permittivity. And epsilon r also known as k, small k से भी डिनोट करते हैं, which is another name dielectric constant. And for different medium, the value of relative permittivity or dielectric constant changes. So we can write epsilon is equal to epsilon naught into epsilon r, or we can write k into er, right? We can write epsilon. The now force between the two charges, the net force, this is not Coulomb force, this is the net force between the two charges in presence of medium. In presence of medium, this is in presence of medium. So force can be written as 1 upon 4 pi epsilon naught into epsilon r. Now here q1 q2 by r square. Now force is equal to, force आया कितना, तो force यहाँ से आ गया, जो आप वैक्यूम में निकालेंगे, मान लीजिए वैक्यूम में फोर्स या फ्री स्पेस में जो फोर्स आ रहा है वो एफ नॉट आ रहा है. एफ नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई आर उसमें नहीं आएगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. तो एफ नॉट बाय ई आर हो गया, इसका वैल्यू एफ नॉट बाय के कह सकते हैं. तो द नेट फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस decreases due to presence of the medium. In the next part, we will understand if the entire medium is not changed, but a part of the medium is changed and other part is still vacuum, then what is the effect of effect on net force? Now, if we take charge Q1 and charge Q2 in a medium whose distance is r, in a medium in charges के बीच का distance जो है वो r है, और medium का dielectric constant k दिया हुआ है, relative permittivity this is not vacuum, k is given. तो इसका पूछा है what is the distance between the two charges should be in vacuum to get the same amount of force. So this is in medium, and you are asked, अगर इस मीडियम से निकाल के वैक्यूम में रख दिए, वैक्यूम में k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. कैसे? k इज इक्वल टू जो वैल्यू लिखते हैं हम लोग, k इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन
नॉट, अगर दोनों सेम हो जाए तो k इज इक्वल टू 1 फॉर E इज इक्वल टू E नॉट। सो हम ये समझेंगे k इज इक्वल टू 1 हो गया जिस मीडियम में, वो वैक्यूम हो गया, फ्री स्पेस हो गया। अब हमको करना क्या है, इसके बीच का डिस्टेंस पता करना है कि व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको आर इफेक्टिव कहेंगे, ताकि मीडियम में लगने वाला फोर्स F हो तो इसमें भी लगने वाला फोर्स F हो, दैट शुड बी सेम। दिस इफेक्टिव डिस्टेंस इज नोन एज इफेक्टिव distance in vacuum or in free space to get same amount of force between the two charges। ये कैसे निकालेंगे? तो सिंपली आप यहाँ से फोर्स निकाल के इक्वेट कर दिए। द फोर्स इज इक्वल टू, आप यहाँ पे फोर्स लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे फोर्स लिखेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। नाउ एवरीथिंग विल बी कैंसल्ड आउट। यू सी दैट यहाँ पे Q1 Q2 गया। After cancelling these terms, you will get R effective square is equal to under root K into R whole square. So R effective is equal to under root KR. This is the rule. But suppose a medium is not fully covering between the charges. जैसे मान लीजिए कि आपको Q1 दे दिया गया और Q2 दे दिया गया और बीच में एक मीडियम जो है इस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया। दिस इज़ द मीडियम। इसकी थिकनेस दी हुई है, मान लीजिए यहाँ से थिकनेस हो गई इसकी T, और पूरा डिस्टेंस जो Q1 Q2 के बीच का R, और ये परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी K दिया हुआ है, और बाहर जो है वो K इज इक्वल टू 1 है। मतलब बाहर जो है वैक्यूम है, अंदर ये मीडियम है। इस मीडियम के इंट्रोडक्शन से फोर्स में क्या इफेक्ट आएगा, तो इसका हम आर इफेक्टिव लिखना सीख जाएंगे। आर इफेक्टिव तो हमको निकल सकता है, मतलब इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इफ़ दे आर केप्ट इन अ वैक्यूम, the same amount of force will be there. So once we calculate R effective कितना हो जाएगा, जो मीडियम में है उसका R effective निकलेगा, जो ऑलरेडी वैक्यूम में है वो तो हटा देंगे। तो वैक्यूम में ऑलरेडी R माइनस T पार्ट ऑलरेडी वैक्यूम में है। मीडियम का कितना पार्ट है, T पार्ट है, उसका इक्विवेलेंट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो उसका इक्विवेलेंट डिस्टेंस हो जाएगा इफेक्टिव डिस्टेंस अंडर रूट K इंटू T। This is the R effective term. Once you know R effective, you can write finally the force 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R effective square. This is the force between the two charges when a medium is kept inside, a slab is kept inside the charge. Now, what is the Coulomb's force in vector form? Coulomb's force in vector representation or vector form. Simple easy terms, we will take axis, x-axis, y-axis and z-axis. There will be two charges, let they are Q1 and Q2. There पोजीशन वैक्टर्स मीन्स ऑरिजिन से आप उसको मिला दीजिए, जो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है वो R1 वेक्टर हो गया। उसी तरह से ऑरिजिन से Q2 को मिला दीजिए, R2 वेक्टर हो गया। ना लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, अगर आप इस लाइन ज्वाइनिंग की बात करें, इस डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर रिप्रेजेंट होगा तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर। आप इसको R21 वेक्टर भी कह सकते हैं। ना इसी डायरेक्शन में अगर मैं पूछूं व्हाट इज़ द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन, तो इसी को R21 को हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं।
यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, R21 वेक्टर का यूनिट वेक्टर देखना हो डायरेक्शन वाइज सिर्फ यूनिट वेक्टर, तो R21 वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से यूनिट वेक्टर निकल गया। अब हम लोगों ने ये सब किया क्यों, तो किया इसलिए कि आपका एक बार यूनिट वेक्टर पता चल गया तो डायरेक्शन पता चल जाएगा कि इस डायरेक्शन में क्या हम लोग वेक्टर देने वाले हैं। तो देखो जैसे ये Q1 पॉजिटिव है और Q2 पॉजिटिव है, तो इस डायरेक्शन का जैसे फोर्स निकालना हो, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकेंड चार्ज ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज F21, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। उसी तरह से इधर का फोर्स इधर जो हो जाएगा F1 ऑन 2, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट चार्ज ड्यू टू द सेकेंड चार्ज। ये हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकेंड चार्ज ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज। नाउ बाय मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखना हो F21 या F12, तो उसको हम लिख सकते हैं इस टर्म में K में भी 1/4πε0 in vacuum, Q1 Q2 by now R square, R is the distance between them R21, तो आप इसको R21 वेक्टर फॉर्म में इसका पहले आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए फिर स्क्वायर कीजिए। दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। सपोज अब इसको वेक्टर बनाना है, तो वेक्टर बनाने के लिए इसके यूनिट वेक्टर इसके साथ में मल्टीप्लाई करने हैं। व्हाट इज़ द यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर इज R21 वेक्टर। आप इसका सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। अगर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो F21 वेक्टर कैन बी रिटन एज K Q1 Q2 R21 वेक्टर हो जाएगा। इसका वैल्यू रख देंगे नीचे। R21 का ये मैग्नीट्यूड है, ये एक्चुअली ये मैग्नीट्यूड है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा R21 का मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर, सॉरी एक और आया तो होल क्यूब। This is the vector representation of Coulomb's law. In the next video, we will discuss about the problems regarding Coulomb's law. What are the problems are asked in JEE, NEET and other competitive examination. For then, thank you very much. Have a good day. 4 perhaps.